రాహుల్ గాంధీపై అస్సాం ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలను కాంగ్రెస్ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఖండించినట్లు పీఏసీ కన్వీనర్ షబీర్ అలీ, పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి తెలిపారు. తక్షణమే ప్రధాని మోదీ అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని బర్తరఫ్ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అస్సాం సీఎంపై రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. కేసులు నమోదు చేయకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ల ఎదుట ధర్నా చేస్తామని వెల్లడించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తారని తెలిపారు. 18న మహిళా నేతలు మహిళా కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేస్తారని వెల్లడించారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణలో 31 లక్షల డిజిటల్ సభ్యత్వాలు నమోదు చేశామని, 50 లక్షల వరకు సభ్యత్వాలు నమోదు చేస్తామని వివరించారు. ప్రధాని మోదీకి తెలంగాణ చరిత్ర తెలియకుండానే పార్లమెంట్లో మాట్లాడారని ఆరోపించారు. 2014లో పార్లమెంటుకు వచ్చిన మోదీకి పార్లమెంట్ నియమావళి గురించి ఏం తెలుసని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణను ఆంధ్రలో కలుపుతారనే భయం తమకు ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు సృష్టించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్రంపై పోరాటం చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. వచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీకి. అస్సాం ముఖ్యమంత్రి అంత ఘోరంగా మాట్లాడతాడా? రాహుల్ గాంధీ పుట్టుకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ చేస్తాడా? అంటే ఇదంతా అనైతికది. ఇది రాజకీయ వ్యవస్థలో ఇంత అనైతిక చర్యలు పాల్పడేటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిని తక్షణం డిస్మిస్ చేయాలా? ఏమాత్రం భారతీయ కల్చర్ ముందని చెప్పేటువంటి ఆర్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్ గా అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని డిస్మిస్ చేయాలా, యాక్షన్ తీసుకోవాలా? ఇంతవరకు ఎందుకు మా కామ ఉన్నారు? అంత ఘోరాన్ని మాట్లాడతారా? అంత వ్యక్తిగా మాట్లాడాలంటే ఇంకా అంత గురించి మాట్లాడతారు. అది సాధ్యమవుతుందా? భారతదేశ సాంప్రదాయానికి నైతిక విలువలకి తిరోధకరించే పద్ధతుల్లో బీజేపీ అట్లా మాట్లాడతా ఉంది. దీనికి కారణం ఒకటే, ఆ జరిగే 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఓడిపోతే ఓడిపోతారు, స్పోర్ట్కి తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఓడిపోతాం కాబట్టి నిరాశ నిస్పృహ నుంచి ఇంత అవాక చవకలు పెడతారా? దీన్ని బట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నైతిక విలువలు ఎంత తొంగదవుతున్నారో మాకు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి బీజేపీ తగిన గుణపాఠం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏమాత్రం బాధ్యత ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ పట్టించుకొని అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని డిస్మిస్ చేయమని సిపిఐ తరఫున మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. భాజపా నేతృత్వంలోని కూటమి మాత్రమే పంజాబ్ను రక్షించగలదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు. రాష్ట్రం నుంచి మాదక ద్రవ్యాల బెడదను పెకిలించేయాలన్నా, అక్రమ మత మార్పిళ్లను అడ్డుకోవాలన్నా భాజపాతోటే సాధ్యమన్నారు. और इस हल्के तो पटियाले हल्के तो उम्मीदवार कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी, गौतम साहब, शर्मा जी, स्टेज ते विराजमान बाकी आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडे ते पटियाला निवासियों बहुत बड़ा मान है महाराजा पटियाला नूं, जिथे इन्होंने पुश्तां ते राज किया, लेकिन पटियाले शहर ते एडा बड़ा मान कि तुसी हमेशा कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह नूं बहुत बड़ियां वोटां नाल जिताया। और अज साडे गृह मंत्री साहब होर हंगारा देने लई, होर हुलारा देने लई अज इत्थे आप तशरीफ लैके आए ने। मैं इन्हां साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आया कहना और उम्मीद करदा कि इन्हां दी लीडरशिप थले, श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की लीडरशिप थले ये जो गठजोड़ बनया ये पंजाब में बहुत ऊंचा फेर जित प्राप्त करेगा। और मैनू मान है श्री अमित शाह जी ते कि जदों भी असीं गए तो इन्होंने बहुत मान सत्कार ते प्यार नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पूरा सत्कार भी दिता और साडियां गल्लां भी मनियां। मैनू उम्मीद इन्हां दे कोई होर जिहड़े मिनिस्टर ने वख-वख महकमिਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलिए वो साडी मदद करन। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं इन्हां ਨੂੰ ਜਦੋਂ भी गया इन्हां दे कोल इन्हां तो मंगिया क्योंकि गृह मंत्री उन्हां दे सी, गृह मंत्री पंजाब दा मैं सी और सानू पाकिस्तान की छेड़छाड़ होंदी रहिंदी सी। होर चीज़ां जो असीं इन्हां तो मंगिया कदे इन्हां ने ना नहीं मैनू कीती, ना मोदी साहब ने कदे ना कीती है, ना किसी भी इन्हां दे वजीर ने ना कीती है। चाहे मेरा महकमा नहीं सी हैल्थ, लेकिन जब कोविड का मसला सी तो साडे वैक्सीन खत्म हो गई, मैं इन्हां दे हैल्थ मिनिस्टर कोल गया, उन्हें दित्ती। इन्हां दे जल शक्ति मिनिस्टर वो अज नहीं आ सके, शेखावत साहब, उन्होंने कोल मैं जाते। तो मेरा कहने का मतलब
कि एक जोड़ होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए अगर आपने अपने सूबे को अगे लेके जाना चाहिए। ये हुण इस ये जी सैशन इन्हों जरा हूँ चल रहा है, इन्हों की अज हुकूमत 2 साल तो ये पे ने और 5 साल मैं थोड़ा अज दस दिना होर आउणगे इन्हों के, ये कोई काट नहीं। 7 साल वास्ते तो आप इस हुकूमत नूं इत्थे देखांगे दिल्ली दे विच। वाहिगुरू करे अगे भी होए, अगे की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 7 साल तो हैं। और अगर असी पंजाब और सेंटर की हुकूमत जो एक ना बहुत गूढ़ा संबंध होएगा साडा, और हर चीज़ असी इन्हां दे नाल बह के गल कर सकांगे, तो इस पंजाब बहुत अगे जा सकता है। इस पंजाब की लोड़ है। अज साडे एक तो साडा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान की छेड़छाड़ वो छड्डो, असी आप ही उन्होंने सांभांगे। गृह मंत्री साहब का काम है, ये आप ही सांभणगे। लेकिन जदों ताईं हालात सुधरते नहीं, उदों ताईं इंडस्ट्री नहीं आएगी पंजाब च। इस करके साडी ड्यूटी बनती है कि इन्हां दी मदद करके आप अपना बॉर्डर ठीक रखिए, और उस पंजाब दे विच फिर आप इत्थे इंडस्ट्री लिया सकीए। हुण पिछली जदों मैं सीगा इत्थे दा मुख्यमंत्री, 1 लाख करोड़ रुपए मैं लाया, जो अज धरती के उपर लग रहा है। ये MOU नहीं, ये जो असल जमीन ते धरती के उपर बिल्डिंग बन रही ने। और कल मैं देख सुन रहा सी, पूरी साहब बोल रहे थे टेलीविजन के उपर अमृतसर दे विच, साडे मंत्री साहब वो कह रहे थे 1 लाख करोड़ असी होर लावांगे। मैं कहना 2 लाख करोड़ आपां नूं लाउणा चाहिए, ताकि जेड़े बच्चे साडे हैं। और मैं थोड़ा एक गल दसा, कल मेरे को एक बच्चा आया और होनहार सी, दाढ़ी मसा छोटी जी आई सी, और मैनू कहना सर मेरी मदद करो। मैं क्या की गल? कहते मैं कैनेडा जाना है। मैं क्या की कीता तुसीं उत्थे की कैनेडा? कहना मेरा कोई लाइफ बन जाएगी। मैं क्या क्यों की गल, थोड़ा की है थोड़ा जिहड़ा तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो अपने वास्ते? कहते मैं एक आर्कीटैक्ट है, मैं आर्कीटैक्ट की है। मैं क्या बेटा अगर असी इत्थे ही 2 लाख ला दिए और इत्थे बिल्डिंगां बनन लग जान, इत्थे ही काम हो जाए थोड़ा, तो बाहर जाने की की है? थोड़े मापे ने, थोड़े सारा परिवार उरे बैठा है, तुसीं क्यों छड़ के जाना उरे? और साडे पंजाब इहदे च मजबूत होगा जब तुसीं लगोगे इत्थे, और साडा देश मजबूत होगा। फिर सब कहते गल तो थोड़ी ठीक है, पर मैं मन बना लिया। तो मैं क्या तुसीं जाओ अपने परिवार नाल गलबात करो, और जदों आ 4-5 दिन च इलैक्शन मुक जाणगियां फिर तुसीं मेरे को आओ मिलो, और फिर मैं थोड़ी अगर जाना है। मैनू तो कोई हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होंदी है, लेकिन मेरी हर भी बेनती है थोनू और अज पंजाब के नौजवानों नू जो इत्थे बैठे ने या अज सुन रहे ने टेलीविजन नू, ये थोड़ा देश है, ये थोड़ा सूबा है, ये थोड़ा घर है। इस घर दे विच थोड़े मापे ने, थोड़े बच्चे ने, थोड़े वीर ने, थोड़े सारा परिवार उरे बैठा है। इन्हों ना छड्डो, और सानू थोड़ी लोड़ है। तुसीं ओ जो नवा पंजाब बनाना है, उस नवे पंजाब दे विच असीं तां हुण अपने आने वाली पीढ़ी के हथ अपना पंजाब जाके असीं जावांगे। संभालना तुसीं है और संभालना साडा देश भी तुसीं। किसान दिखे वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। मित्रों, हमने एनडीए का घोषणा पत्र करा है, और एनडीए के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां 3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत है, पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। मुझे जब मोदी जी की मिनिस्ट्री में मंत्री बनाया गया मोदी जी के द्वारा, दूसरे दिन पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, गृह मंत्रालय मिला, बाद में ब्रीफिंग हुई। मेरे मन में सबसे ज्यादा चिंता थी
कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या होगा। शाम को ही कैप्टन साहब से बात हुई, मैं रिलैक्स हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से 2 साल तक देश की सुरक्षा को छूते हुए जितने भी मुद्दे आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने का काम किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कैप्टन साहब की मजबूरी मैं जानता हूं, उनके आकाओं को पहचानता भी हूं। जब कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समर्थन करते होंगे, तब इनको कितना सुनना पड़ता हो मुझे मालूम है। मैं उनको अच्छे तरीके से परिवार को जानता हूं, शायद अब तो कैप्टन साहब भी जान गए हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज आड़े नहीं आती थी और कैप्टन साहब चट्टान की तरह देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहते थे। आज यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सरकार पंजाब के अंदर, न केवल पंजाब, पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी ना आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियत ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल फ्लेज ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को, जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश खोस उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए
मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं मित्रों। पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं, पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल डाल कर जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर 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 पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के एक पैसे की आय पूरी करे कम करे बगैर उसका हर्जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक सुजलाम सुफलाम रह पाए, ऐसी भूमि बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं ये 3 मुद्दों पर बहुत जोर देना इसलिए चाहता हूं कि ये तीनों मुद्दे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये 3 मुद्दों पर और ज्यादा दमखम से पंजाब की सेवा करना चाहती है। कैप्टन साहब ने सही फरमाया, एक ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर पंजाब का विकास करे। 70 के दशक में पंजाब हर चीज में देश में नंबर 1 हुआ करता था। उद्योग की बात करो तो पंजाब का उदाहरण दिया जाता था। किसानी की बात करो तो पूरे देश का पेट भरने का काम मेरा पंजाब का किसान करता था। युवाओं की बात करो तो पूरे देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने का काम मेरे पंजाब के बहादुर सिख जवान करते थे। मित्रों, हर क्षेत्र में पंजाब का दबदबा था। वो पंजाब को आज फिर से एक बार पूरे देश में नंबर 1 बनाना है तो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, पंजाब को पुराना गौरव वापस दिलाए, ऐसी एनडीए की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, कैप्टन साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं हमेशा, कैप्टन साहब दूसरे दल के नेता रहे, फिर भी हमेशा से मैंने कैप्टन साहब का मन से सम्मान करा है। सार्वजनिक भाषणों में भी इनके प्रति सम्मान का भाव। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के साथ किया है, मैं पटियाला वालों को पूछने आया हूं, 9 में से 1 भी सीट कांग्रेस को जानी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए क्या? नहीं। जिन्होंने कैप्टन साहब को इस तरह से अपमानित किया, वो कांग्रेस पार्टी को पूरा पटियाला एक मुश्त होकर हॉकी गेंद, कमल और टेलीफोन के निशान पर बटन दबाकर उसका जवाब दे, इसका समय अब आ गया है। मित्रों, पंजाब की हालत बहुत खस्ता हो गई और नेतृत्व भी एक ऐसा पसंद किया है कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब और खस्ता होने वाली है। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टिक्का कर। 4 लाख करोड़ का ऋण है, कैसे करोगे? कोई रोड मैप है? कोई कार्य योजना है? क्या समझ रहे हो पंजाब की जनता को? आप बोलोगे और सब मान जाएंगे? मित्रों, सारे के सारे बिजली के कारखाने संकट में चल रहे हैं। नवंबर 2020 में 3 थर्मल प्लांट बंद हो गए। जीवी के पावर, नाभा पावर और तलवंडी साबो तीनों बंद हो गए।
लहरा मोहब्बत और रोपड़ में बिजली संयंत्र लगा है, वो भी बंद होने की कगार पर है मित्रों। और आज देश में जो 100 अपराध नशे के खिलाफ अगर रजिस्टर होते हैं, उसमें से 39% पंजाब के अंदर होते हैं। चन्नी साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना बताओगे क्या आप? केजरीवाल जी, इसके लिए कोई कार्य योजना लेकर पंजाब की जनता के सामने आए हो? अरे जब्त की हुई 5 करोड़ टैबलेट नशे की गायब हो गई, आपके माथे पर जू नहीं रेंगती है, आप कैसे नशे को रोकोगे? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हम यहां पर पंजाब के विकास का खाका लेकर आए हैं और पंजाब के अंदर जो महान सिख परंपरा है, सिखी के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सिख परंपरा के लिए किया है, देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मना चुके हैं। तेग बहादुर जी का सम्मान करना अभी चालू है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती में 350 करोड़ खर्च कर दशम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका संदेश पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैप्टन साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको याद होगा जब भी डिमांड आई कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर शुरू होना चाहिए, एक ही महीने में निर्णय किया और कुछ ही समय के अंदर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिबजादों के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिबजादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैक लिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैक लिस्ट में हैं। अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से एसआईटी बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार
जो दंगों का विक्टिम था, उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है, इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहां जो बनेगी, वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर आज तक केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है। मित्रों, पंजाब का किसान, देश को जब अन्न की जरूरियात थी, तब पंजाब के किसान ने देश కర్ణాటక హిజాబ్ వివాదంపై యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించారు. దేశం షరియత్ చట్టం ప్రకారం నడవదని, రాజ్యాంగం అనుసరించే వ్యవస్థ ఉంటుందని అన్నారు. ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ ఓవైసీ మాట్లాడుతూ హిజాబ్ ధరించిన మహిళ ఏదో ఒక రోజు ప్రధాని అవుతారని అన్నారు. ఈ అంశంపై యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాట్లాడారు. प्रत्याशी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आपने 2017 में भी अपना आशीर्वाद दिया था। श्री रमेश चंद्र दिवाकर हमारे लोकप्रिय विधायक के रूप में उन्होंने काम किया। कोरोना कालखंड में वे नहीं रहे। मैं उनके कार्यों के प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं औरैया विधानसभा सीट की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए विशेष रूप से आया हूं। अभी इससे पहले मैं बिदुना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने के लिए वहां की जनसभा को संबोधित करने के बाद आपके बीच में आया हूं। अपार उत्साह, जैसा उत्साह यहां पर है वैसे ही बिदुना में भी था। ऐसे ही इससे पहले फर्रुखाबाद में, भोजपुर में और ऐसे ही जलेसर में भी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समर्थन में यह अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका कारण भी है, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी, जो गुंडाराज था, जो दंगों का शासन था, नाम तो समाजवादी था लेकिन काम दंगावादी था और सोच परिवारवादी था। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। वह सोच जो केवल अपने को सिपाही तक सीमित रखती थी, अपने खानदान तक सीमित रखती थी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने दुम दबा करके चलती थी,
सत्ता की मजबूरी क्या हो सकती है गुंडे और माफियाओं के सामने, इसका जीता जागता उदाहरण कोई और था तो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जो सरकारें काम कर रही थी उनकी कार्य पद्धति से स्पष्ट देखा जा सकता है। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, तो भाइयों बहनों, जनता जनार्दन के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई? पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले जगह जगह बमबाजी करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, क्या अब भी वसूली कर पा रहे हैं? फर्क साफ है। पहले कर्फ्यू लगता था और अब तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है। फर्क साफ है। 2017 के पहले व्यापारियों पर बाजारों में अपराधियों के द्वारा बम फोड़े जाते थे। 2017 के बाद कांवड़ यात्रा में चलने वाला शिव भक्त हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जब निकलता है तो हर भारतीय उसकी ओर अभिभूत होता है। भाइयों बहनों, एक और सुरक्षा का यह वातावरण इसने निवेश दिया है। भारी पैमाने में प्रदेश के नए उद्योगपतियों ने निवेश लगाया है और औरैया की तो बात। ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు సహా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ప్రతికూల పరిస్థితులతో సోమవారం ఉదయం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం స్టాక్ మార్కెట్లు తెరిచే సమయానికి 56,943 వద్ద ప్రారంభమైన బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ అరగంట వ్యవధిలోనే 300 పాయింట్లు నష్టపోయింది. 17,023 వద్ద ప్రారంభమైన జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నిఫ్టీ 380 పాయింట్లు నష్టపోయింది. నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ షేర్లకు నేలబారు చూపులే దిక్కవగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇంట్రాడే కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. నిఫ్టీలో M&M, SBI, ITC, L&T మరియు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ప్రధాన నష్టాల్లో ఉండగా ONGC మరియు TCS లాభాలతో ప్రారంభించాయి. దేశంలో ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన బ్యాంక్ మోసాలు, ఇతర కుంభకోణాలు, ఆసియా మార్కెట్ల ప్రభావం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై స్పష్టంగా కనిపించినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. లక్షల కోట్ల రూపాయల మదుపర్ల సంపద ఆవిరైపోతుంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఆరంభంలోనే భారీ నష్టాలతో మార్కెట్లు ప్రారంభం కావడం ఇన్వెస్టర్లలో మరింత ఆందోళన పెంచుతుంది.